Hello, friends. My name is Vishal, and I am a teacher at Mount Carmel School, Baghmugalia, Bhopal. I welcome you to this talk that addresses a wonderful subject. As you can see on your screens, the question clearly mentions and knocks the doors of our heart that why should I study moral science? जी हाँ दोस्तों, हम स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि जिंदगी की दौड़ भाग में जीतने की जद्दोजहद में और पाने की और जानने की और ऊंचाइयों को छूने की इस जीवन की लालसा में है, हम अपना ध्यान कई जगहों पर लगाते हैं. वी इन्वेस्ट our attention, our passion and efforts in various directions and in various objectives that we have. लेकिन स्कूलों में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मॉरल साइंस, और हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे स्कूल में बड़े ही जोश और बड़े प्रेम के साथ ये सब्जेक्ट मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है. सवाल ये उठता है, व्हाई शुड आई स्टडी मॉरल साइंस? मुझे मॉरल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए? So, my dear friends, I'm sure you all will agree, school for us is the second home and temple of learning, and it plays a predominant and a very important role in molding the character of each child. And we also have our experience of our school days as well. So these children, just like how when we were studying and we are still studying in the school, we enter the school with great hopes and great expectations. And it is this subject, moral science, that carves our personality into what can be described as a great and amazing personality. The values we imbibe, the perceptions and principles that we acquire, and the life examples we see during these early school days, these wonderful school days of our life, and even in college also, they have an everlasting influence and impact on our future life and activities. तो हम जानते हैं, जब हम स्कूलों में जाते हैं और हम देखते हैं कि इतनी अच्छी बातें हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, हमारे अंदर अच्छाई का संचार करने के लिए, हमें एक सद पुरुष और एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए मॉरल साइंस हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है. हमारा जीवन जब स्कूली दिनों में कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उस समय जो भी हम सीखते हैं, जो अच्छी बातें हम स्कूलों में उस समय सीखते हैं मॉरल साइंस के द्वारा, वो अपने सारे ज़िंदगी में हम उन अच्छी बातों को संजोए रखते हैं और एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन अच्छे मूल्यों के आधार पर जी पाते हैं. That is why you know that, my dear friends, the Indian society considers education as a very sacred mission. And educators, यानी कि गुरु, हमारे देश में ईश्वर के तुल्य माने जाते हैं. Educators are considered equal to God. So, while
we are in an institution going to study, while we are in the vicinity of a person who we call as a teacher, while we are in Vidya ke Alay, that is the house of education and knowledge, there has to be a very strong impact on our life from this wonderful subject, moral science, and we have to consider it important. We know very well that after God and parents, it is the educators, our teachers. They teach and they train the children and they help the children to understand the difference between what is good and what is bad. So, sometimes in this stage of growing with the learnings of moral science, while we are on a journey of life, we get ethics, we build our value system, we learn so many things, and all this remains with us throughout our life. There are so many subjects you study, my dear friends, but I'm sure that many of that information, lot of that information will be lost, will be dropped from our memory baskets as we will not be using them. But what we learn through moral science remains with us throughout our life's journey. So we have to be decent, dignified in all our dealings with ourselves, with other people. And to reap a harvest of good work throughout our life, we have to give high priority to moral science. It may be one of the thinnest books, or a book that we may forget to pack according to our timetable in our school bags. It may be something that we may not consider important because it may not reflect very much in your report cards or in some competitive exams in the future. So we quite underrate it. We don't understand the importance of moral science. And I'm sure many of us who are going through this video right now and later also, you may just pause for a moment and think in your life. Even you can ask your parents and grandparents, what has remained with you throughout your life? The various difficult theories and principles that you learnt in various fields of academics, or your values that you have with you, they always will remain with you. So this is the right time that we should consider and embrace moral science lessons that will help us build ourselves as a wonderful person. Yes, we may have doctors, we may have professors, we may have engineers, we may have politicians, we may have any profession you want to think of. But until you don't prefix good along with it, for example, I'll give you my example. You expect from me to be a teacher, and I am expected to do my works as a teacher, right? Do you expect me to be a bad teacher or a good teacher? Now, that is a question. Do you expect me to be a bad teacher or a good teacher? So you expect me to be a good teacher. So teacher, yes, I have learned a certain subject, I mastered it, and I got good degrees in it, and probably I have good experience of teaching that subject. So I'm a teacher of that subject. But what makes me a good teacher? Values. What concern I have for others. What effort I put in to make sure that you learn and I make learning easy for you. How sensitive I am towards you and your problems.
how much I am blessed with being your well-wisher. And all these values that you desire from me to make me your good teacher, the word good is associated with me, and that comes from moral values, moral science, the ethics that I carry. I'm taking my example. Now you can look at any example that you have. You like your parents, but you like them to be good parents. Parents want children, but they want good children. You want neighbors, but you want good neighbors. You want friends, but you want good friends. You want business associates, but you want good business associates. How will all this come in the world? How can you expect goodness in the world for yourself when goodness is being given a low priority? It has been said, the destiny of India is being shaped in classrooms. So what kind of India we want? India will be made and represented by its people. So we want that India should be a good India with good citizens. And that will happen when we prioritize the learning, the manifestation, the experiencing, and the building of good value systems within us by giving moral science an equally high priority in our life. Therefore, moral science is very important, my dear friends. Yes, because this has a direct connection with your personality, with how amazing you are going to be in this world. Yes, my dear friends. To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to the society, a menace. So, a person without morals is just the opposite. You will grow, but you will not grow in goodness. You will grow in just the opposite. So, the failure of the present education system, as many people keep on talking about, it's not based on the result that we get. Oh, so many students got 100% result. So many students got very good result. So many cups have come into the school. Or even for the family, we should not be happy that, oh, the children are getting very good marks or the children are getting very much lot of cups and for various achievements. Yes, of course we are happy with those achievements. We are. But then we have to analyze that, is that true success? Have we compromised somewhere with the moral growth, the moral development? Have we missed out on helping people to grow a good value system within themselves? We teach our children various subjects aiming to give them better prospects and career, neglecting very often the most important element. Man is a combination of both human and divine element. We know this. So हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का ही वास होता है. हम अगर हमें कोई अच्छी बातें नहीं बताई जाएंगी तो हमारे अंदर अच्छाई का संचार आसानी से नहीं होगा. हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे. हम दूसरों से अच्छा व्यवहार, अच्छी तरह से बात और हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होंगे. और हम जिस किसी से भी मिलेंगे वो हमें एक अच्छा इंसान नहीं मान पाएंगे. और हम खुद भी अपनी अंतरात्मा में जब भी झांकेंगे अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं पाएंगे. हम अपनी खुद भी वो इज्जत नहीं कर पाएंगे जो एक अच्छा इंसान अपनी खुद की इज्जत करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो अच्छाई के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं. So the main purpose of education is to bring out this divinity, this goodness, this godliness in every child.
तो बच्चा बहुत पढ़ लिख जाए, लेकिन अगर बच्चे में अच्छाई के भाव नहीं आए तो पढ़ाई अधूरी रह गई है। तो हम अपनी पढ़ाई को अधूरी नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में बड़े होने के इस सुंदर अनुभव को और सुंदर बनाएंगे, अच्छी अच्छी बातों को सीखते हुए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हुए। Therefore, value education, moral development, moral science plays the most significant role in our lives, especially when we are in school, especially in our childhood. It integrates human beings and the divine element in every child and in the most appropriate and balanced manner. इसीलिए पेरेंट्स और हम सभी समाज के लोग कोशिश करते हैं एक अच्छा स्कूल ढूंढने की अपने बच्चों के लिए। सर्टिफिकेट और पढ़ाई लिखाई तो हर स्कूल में होती है, लेकिन अच्छे विचारों को डेवलप करना, अच्छे मॉरल्स को डेवलप करना, मॉरल साइंस को एक जीवन में उसके जीवन की दिनचर्या बनाना, ये हर स्कूल या जो भी स्कूल ये करते हैं, पेरेंट्स ऐसे स्कूल को डिजायर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उसका फल घर पे मिलता है। जो अच्छी बातें बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वही अच्छी तरीके से वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने पेट्स के साथ, उसी अच्छाई के साथ वो बिहेव करते हैं, है ना। तो द इनिशियल फ्रूट्स of goodness that are learnt in the school are enjoyed by the family. Yes. So, my dear friends, I'm sure आज के बाद आप इस बारे में जरूर विचार करेंगे कि मुझे मॉरल साइंस पर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हम अपने मन में रखते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी हम मॉरल साइंस में पढ़ते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहता है, वो हमें समाज में इज्जत, प्रेम और एक अच्छा इंसान बनाता है। ठीक है, हमारे जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये मॉरल साइंस के जो लेसन्स होते हैं, जो वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होते हैं, वो एक अच्छा डिसीजन लेने में हमें मदद करते हैं। हम समाज के संरक्षक बनते हैं, अच्छे समाज के निर्माता बनते हैं, है ना। सो these moral values are very important because tomorrow we represent our families, tomorrow we represent humanity, tomorrow we represent our country, and we need to represent with good values, which we need to learn at an early age. Therefore, my dear friends, moral science is, I must say, more important than any other subject. Because if you have not learned the other subject, you may still be able to make a living in some other area. But if you've not learnt moral science, you did not develop values, you did not develop the ethics that you need to make you a good person, no matter which field you will go, you will be a source of destruction. Unfortunately, we find there are so many intelligent people in the world, है ना, लेकिन अगर उन्होंने अपने मॉरल्स को के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, तो आप देख सकते हैं दुनिया में डिस्ट्रक्शन हुई है। ये अब उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी नॉलेज का दुरुपयोग करके उन्होंने जीवन को बर्बाद किया है, लोगों को मृत्यु की राह पर ले गए हैं, दुख की राह पर ले गए हैं, और वहीं इन परेशानियों से लड़ रहे हैं कुछ लोग जो अपनी नॉलेज और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं अच्छाई के लिए। और जो लोग अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, दे आर ब्लेस्ड विथ मॉरल्स। सो who do you prefer? The people who are going to destroy us, or the people who are going to help us or restore life and harmony? And how you would like to be, a destroyer or a reformer? That is the big difference between moral science and not having moral science. So same knowledge that and science that you learn can become a source of destruction without moral science. And with moral science, you can become a wonderful person and use the same knowledge for the betterment of humanity. दूसरों के भले के लिए आप यूज करेंगे। आइए हम मॉरल साइंस के बारे में और जानकारी लेते हैं। मॉरल साइंस जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है ना, मॉरल प्लस साइंस। तो साइंस के बारे में हम जानते हैं, साइंस जो है एक इट्स लैटिन वर्ड सैंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो साइंस जो शब्द है उसका मतलब ही नॉलेज है।
It's a process of constructing, organizing, and texting, explaining, and also prediction about the world around us. तो हम अपने दुनिया के बारे में जानकारी लेते हैं और हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, और हम कुछ नए नए काम भी करते हैं। हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और नॉलेज जो हमने गेन किया है उसका यूज़ करते हैं। ये सारा काम हम साइंस के द्वारा करते हैं। तो अगर शॉर्ट में देखें, व्हाट इज साइंस? साइंस ज्ञान है, नॉलेज का भंडार है, राइट? वेरी गुड, ये तो आप लोग जानते ही हैं ना साइंस के बारे में। ओके, आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग, आपको मजा आ रहा होगा। ओके, इट्स अ वेरी अनोखा टॉपिक है, ये बहुत ही अनोखा टॉपिक, इट्स वेरी यूनिक टॉपिक। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है? कभी सोचा है कि अगर कोई हमसे पूछता है तो मॉरल साइंस क्यों पढ़ते हो, क्या मॉरल साइंस पढ़ना जरूरी है क्या? आइए हम इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। मॉरल्स, as we know, morals can be defined as morals are principles and values based on what a person or society believes are the right, proper or acceptable way of behaving। तो किसी चीज को सही तरीके से समझना, जानना और उसके सही तरीके से कैसे आचरण करें, ये डिपेंड करता है आपके किस प्रकार के मॉरल्स एंड वैल्यूज हैं, ठीक है? तो इन मॉरल्स एंड वैल्यूज के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारा कौन सा बिहेवियर सही है। सही और गलत की पहचान होती है इसके द्वारा। व्हेन एन इंडिविजुअल इज डीलिंग विथ और कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो जब हमारे पास मॉरल्स होंगे, वैल्यूज होंगे, हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, हम अपना एक एथिक सिस्टम या वैल्यू सिस्टम डेवलप करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। सही और गलत का हम डिफरेंस जान पाएंगे और फिर हम सही काम करेंगे और गलत काम से बच पाएंगे। तो आपने देखा कि ये कैसे साइंस एंड मॉरल, यानी कि मॉरल साइंस क्या है? अच्छे और बुरे को जानने की ज्ञान, नॉलेज। द साइंस ऑफ साइंस इज नोन एज नॉलेज एंड मॉरल्स है अच्छे और बुरे जानने की वो कैपेबिलिटी। तो वो कैपेबिलिटी हमें अच्छे और बुरे की जानकारी मिलती है और उसके बाद हम अच्छे और बुरे के बीच में पता कर पाते हैं कि हमें कौन सी दिशा में अपने जीवन को लेके जाना है। इसलिए मॉरल साइंस बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज के बारे में अगर हम जानें तो हम महात्मा गांधी, हमारे बापू, प्रिय बापू हमारे देश के, वो हमें समझाते हैं योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज एंड योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। तो ये बहुत ज़रूरी और अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं आपके जीवन में, आपके विचारों पे, आपके शब्दों पे, आपके कार्यों पे, आपकी आदतों पे, आपके जो संस्कार वाले वैल्यूज़ हैं और आपके भविष्य में आपके साथ क्या होगा, डेस्टिनी, ये सब मॉरल वैल्यूज पे आधारित हैं। ये किसी बायोलॉजी या मैथ्स या कोई और जो साइंसेस हम पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मॉरल वैल्यूज पे। यस, डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका वैल्यू तभी तक है जब आपके अंदर एक अच्छे इंसान के रूप में मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है ना? तो महात्मा गांधी जी ने हमको कितनी अच्छी बात बताई है मॉरल वैल्यूज के बारे में और इम्पोर्टेंस समझाया है। अगर हम आगे देखें, इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, मदर टेरेसा। अब तो ये संत घोषित हो चुकी हैं और हमारे देश की एक संत है जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना और इनका आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बना रहता है। ये कहती हैं, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट लीविंग बेटर एंड हैप्पियर। किसी को भी अपने पास, जो भी आपके पास आए, आपके सानिध्य में उनको खुशी मिलनी चाहिए। आपकी आपका व्यक्तित्व और पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आपके पास आए तो आपको खुशी, वो और खुश हो जाएं। बी द लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स काइंडनेस। और जब लोग आपसे बात करें और जब आप उनसे बात करें तो आपके हाव भाव, आपके देखने, मुस्कुराने, इन सब तरीकों से ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर भगवान वास करते हैं और भगवान की प्रेम, करुणा और दया आपके अंदर वास करती है और वो प्रेम उन्हें आपके द्वारा भी महसूस होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व के द्वारा, आपके आभापूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा ये सब महसूस करना चाहिए। सो योर काइंडनेस थ्रू योर फेस, योर आईज एंड योर स्माइल, ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आपके अंदर ये मॉरल वैल्यूज अंदर होंगे। क्योंकि अगर ये मॉरल वैल्यूज आप में नहीं है तो लोग आप में वो चीज नहीं देख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये देखिए,
आप तो ने पहचान ही लिया होगा. यस, यू ऑल हैव रिकग्नाइज्ड हिम. स्वामी विवेकानंद जी. यस, एंड वी फॉलो हिम, एंड वी 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 आर very fortunate that he was born in India, and India has been blessed with the wisdom of great people, especially one of them, Swami Vivekanand. Okay, he says the only definition that can be given of morality is this: that which is selfish is immoral, and that which is अनसेल्फिश इज मॉरल. तो हम देखते हैं कि जहां पर स्वार्थ जुड़ जाता है वहां मॉरलिटी आपके व्यवहार और जीवन से बाहर चली जाती है, आपसे अलग हो जाती है, और जहां आप निस्वार्थ हो जाते हैं वहीं मॉरलिटी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ. ओके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यदि मैं अपने बच्चों से कहूँ, अपने स्टूडेंट से कहूँ, बेटा मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छे नंबर दूंगा जो मेरे साथ प्राइवेट ट्यूशन में आएंगे और मुझे प्राइवेट ट्यूशन में अच्छा पैसा देंगे, तभी मैं आपको अच्छे नंबर दूंगा. तो क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ? नहीं, मेरे अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ है. मैं तो फिर अपने कर्म को ठीक से कर नहीं रहा हूँ, है ना. तो आप लोग कहेंगे हाँ टीचर तो अच्छे हैं, नंबर अच्छे देते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ इधर उधर का कुछ काम करना पड़ता है ना. उनके घर जाना पड़ता है, कोचिंग करना पड़ता है, तभी वो स्कूल में अच्छे नंबर देते. अगर ऐसा है तो क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? मेरे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है आपको पढ़ाते समय, तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ. करेक्ट, ठीक है. तो सिमिलरली हम आज स्वामी विवेकानंद जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमारे हृदयों को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को परमेश्वर वो ताकत दे ताकि हम स्वार्थ से, लालच से बच सकें, और दूसरों के लिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं या अपने ही कर्म को कर रहे हैं, जो हमारा अपना सर्विस करने का जो हमारा कर्तव्य है, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है ना, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट के द्वारा मुझे वहाँ बिठाया गया है ताकि मैं एक अच्छी सी सेवा दे सकूँ लोगों को, वो सेवा करना मेरा काम है. इन सब कामों को, अपने ही कर्मों को करने के लिए, अपने ही जो मुझे करना है, जो मुझे कार्य दिया गया है, उन कार्यों को करने के लिए मैं अगर निस्वार्थ भाव से वो काम करता हूँ, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो, तो मैं एक मॉरल व्यक्ति हूँ. आज की डेट में हम कहते हैं दुनिया में कितना करप्शन भर गया है. कोई भी काम है, हम लोगों को हम कभी-कभी ऑनेस्ट लोगों को भी ना डिसऑनेस्ट ही समझते हैं, क्योंकि इतना करप्शन फैल गया है, या भ्रष्टाचार के बारे में इतनी बातचीत होती है. लेकिन उसका बीज क्या है? व्हाट इज द सीड ऑफ करप्शन? इज इट नॉट सेल्फिशनेस? क्या ये स्वार्थ तो नहीं है कि मैं अपने काम करने के लिए मुझे पैसा दीजिए, वो पैसा मैं उससे मैं अपना अच्छा घर बनाऊंगा और बड़ी गाड़ी लूंगा, या अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है ना. तो इसलिए यू कैन सी विवेकानंद जी ने कितनी प्यारी और अच्छी बात कही है, और इट इज लाइक अ मेडिसिन दैट कैन एक्चुअली क्योर the corruption from many hearts and from many countries. अगर ये फॉलो किया गया, the only definition that can be given of morality is this: that which is selfish is immoral. अगर आप सेल्फिश हैं, आपके अंदर स्वार्थ है, तो डेफिनेटली वो कार्य आपका इमोरल है. एंड अगर आप सेल्फिश नहीं है तो आप डेफिनेटली मॉरल व्यक्ति हैं. इन्हें आप जानते हैं ना, नारायण मूर्ति. यस सर, नारायण मूर्ति जो है ये इज एसोसिएटेड विद इन्फोसिस. या वी नो दैट. यस, तो आप देखिए इन्होंने एक टॉक दिया था, उस टॉक का आप देखिए शीर्षक क्या था. व्हाट वाज द टाइटल? द डिफिकल्ट बट सैटिस्फाइंग पाथ ऑफ ऑनेस्टी. तो यस, ऑनेस्टी इज डिफिकल्ट. हाँ, इस समय ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं. ऑनलाइन एग्जाम में ऑनेस्टली एग्जाम अगर हम देंगे, एक दो चीज़ें हो सकता है हमें नहीं आएगी तो हमें नंबर कम मिलेंगे. लेकिन जो लोग डिसऑनेस्टली एग्जाम देने का सोचते हैं, उनको लगता है बड़ा आसान है, किताब खोला, आंसर देखा, डर दिया, है ना, पूरे नंबर ले लिए, ठीक है. लेकिन जब रियल लाइफ में, जब ऑफलाइन कभी एग्जाम होगा, तब सारी सच्चाइयाँ बाहर जाती हैं. या जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है, तब सारी सच्चाइयाँ बाहर आ जाती हैं. तो तब बेइज्जती और होती है उस समय, है ना. प्लस एक और चीज़ है, जो आपने मेहनत से कमाया नहीं है, उसको आप आसानी से गवा भी देते हो. जो नॉलेज आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से लाया, आप उसकी वैल्यू भी नहीं कर सकते. तो द डिफिकल्ट बट सेटिस्फाइंग पाथ ऑफ ऑनेस्टी. तो ये डिफिकल्ट है, ऑनेस्टी डिफिकल्ट है, लेकिन सेटिस्फाइंग है. आप जो भी भले एक रोटी कमाएंगे, वो रोटी आपको मीठी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप सेटिस्फाई होंगे. और वही अगर डिसऑनेस्टली हम बहुत सारा खाना हमारे सामने पड़ा होगा, हम तो भी हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे.
है ना? हमारे पास बहुत अच्छा बेड होगा लेकिन हम उस पे सो नहीं पाएँगे, हमें नींद नहीं आएगी, है ना? कहीं न कहीं एक बैलेंस तो भगवान बनाता ही है। तो ये चॉइस हमारे ऊपर है कि अगर हम मॉरल वैल्यूज़ को लर्न करेंगे तो हमारे अंदर इतनी ताकत रहेगी कि हम कैसे भी सिचुएशन में अपने आप को ऑनेस्ट बना के रख पाएँगे। हम जल्दी से हम डिसऑनेस्टी की तरफ नहीं सोचेंगे, है ना? चाहे चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आई, तो ये लिखा हुआ है द डिफ़िकल्ट बट सैटिस्फाइंग पाथ ऑफ ऑनेस्टी। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट टू कीप एंड इट्स अ ट्रुथ। सच्चाई है ना? ऑनेस्टी मुश्किल होता है, कोई भी ऑनेस्टली जीना आसान नहीं है, लेकिन सैटिस्फाइंग है। आप खुश रहेंगे, अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे, है ना? यू विल बी हैप्पी, व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब आप इनको जानते हैं, लुईस पास्चर। Yes, इनके बारे में अब कोई नहीं जानता है. He's a great scientist of his own time, and he found out so many, medicines and vaccinations. And one of the important thing that he found out as that आज की डेट में हम लोग कितना सैनिटाइजेशन और हाइजीन पे बिलीव करते हैं. तो ये भी इन्होंने अपने टाइम में डॉक्टरों को बताया करते थे कि वो उनको अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेशन वगैरह करने वाले इक्विपमेंट्स और जांच करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं और उनके जो हाथ हैं, उसको इनको साफ करना चाहिए और साफ करके ही दूसरे पेशेंट को देखना चाहिए। तो इनके कारण ही हम देखते थे शुरुआत में, जो आजकल तो डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए, नहीं तो उससे पहले जो भी इक्विपमेंट्स थे, डॉक्टर्स उसको बॉइलिंग वाटर में बॉईल करते थे ना, पाश्चराइज करके साफ करते थे। और हम लोग रोज किचन में देखते हैं या मम्मी जो है वो और इसको दूध को गर्म करते हैं ना, उस पे पतीले में रोज आना देखिए उबालते हैं दूध को। क्यों उबालते हैं? ताकि वो ज़्यादा समय तक रह पाए। वो भी इन्होंने बताया था। तो आप देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत बातें बताई हैं। The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the creator. Scientists bring men nearer to God. So science has brought men nearer to God. How it will bring you near to God? Only when you have moral values. The same science can take you away from God if you don't have moral values. इसलिए कभी भी मैं जब स्कूल में भी पढ़ाता था, मैं कई बार ऊपर बोर्ड पे भी लिखता था that I teach science for harmony and peace. Yes, I will be proud with a person who will learn science and use it for harmony and peace. But I'll be extremely sad अगर मुझे पता चला कि मेरा कोई स्टूडेंट था है जिसने साइंस का गलत इस्तेमाल किया और गलत चीज़ें बनाई। तो इट इज़ सैड फॉर मी ऑल्सो, है ना? तो साइंस ब्रिंग्स मैन नियरर टू गॉड। सिमिलरली उन्होंने कहा साइंस नोज नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए है। जो भी आप नॉलेज लर्न कर रहे हैं वो इंसानियत के लिए है, ठीक है? ये वैल्यू कैसे आएगी आपके अंदर? ये तभी आएगी जब आप मॉरल साइंस पढ़ेंगे, जब आप मॉरल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, जब आप एथिक्स को डेवलप करेंगे अपने अंदर वैल्यू सिस्टम और एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप बता पाएंगे। एक ग्रेट साइंटिस्ट भी कह रहा है कि नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी, साइंस ब्रिंग्स मैन नियरर टू गॉड। सो इट इज़ द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, एंड दैट विल हैपन ओनली जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप हों। सो अब एक और चीज़ है, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। ये मैथ्यूज बाइबल चैप्टर 7 वर्स 12 में लिखा हुआ है। जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार आप खुद करें। अगर आप एक चाहते हैं एक डॉक्टर आपको ऑनेस्टली ट्रीट करें तो आप भी एक ऑनेस्ट व्यक्ति बने। अगर आप चाहते हैं एक इंजीनियर ऑनेस्टली आपका कंस्ट्रक्शन करें या कुछ भी वर्क करें तो आपको भी एक ऑनेस्ट व्यक्ति बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके नेबर्स भी आपके साथ ऑनेस्टली एंड विद काइंडनेस एंड लव एंड कंपैशन एंड केयर एंड कोऑपरेशन के साथ रहें, पीसफुली रहें, तो आपको भी एक वैसा व्यक्तित्व बनना चाहिए। अगर आप ऑफिस में चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और कोऑपरेट करें आपके साथ और वो भी आपके साथ ऑनेस्ट रहें, है ना, और ट्रूथफुल रहे और उनका व्यवहार भी अच्छा रहे, तो आपको भी वो सब दूसरों के लिए अपने मन में संजोना पड़ेगा, दूसरों के लिए। तो जैसा आप चाहते हैं कि दुनिया आपको ट्रीट करे कम से कम वैसा तो आप बने। सो इफ यू वांट अ चेंज इन द वर्ल्ड यू बी द चेंज, महात्मा गांधी जी कहते हैं, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ कितना सुंदर ये फोटो है। इस फोटो को अगर आप देखते हैं, इस पिक्चर को अगर आप देखते हैं तो ये एक कहानी बताता है। देखिए हर व्यक्ति के पास अलग अलग वैल्यूज़ है, अलग अलग सुंदरता है। देखिए हर व्यक्ति में, जब हर व्यक्ति अपनी सुंदरता को, अपनी अच्छे वैल्यूज़ को लेके आता है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप अपने अच्छे वैल्यूज़ लाए, आप अपने अच्छे वैल्यूज़ लाए, आप अच्छे वैल्यूज़ लाए, तो ये जो प्लेन था, जो लाइफ बिकेम सो ब्यूटिफुल, दिस पिक्चर हैज़ बिकम ब्यूटिफुल। Why it has become beautiful? Not just because of the flowers that you see there, but you see the offering of flowers. The flowers are being offered.
राइट? तो यही है, हम अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपनी अच्छाई दूसरों को ऑफर करते हैं ताकि उनका जीवन और सुंदर बन सके, उनके जीवन में दुख कम हो सके, तकलीफें परेशानियां कम हो सके. So this is something we are called for. We are become human beings. God has made us like him. God has put his divinity and godliness in us for loving others, for caring for others, for carrying the torch of humanity in the generation in which I live, right? So this is something, this picture speaks a million stories, I believe, especially about moral science. It doesn't matter this whether this hand is of an engineer, it doesn't matter. It doesn't matter this hand is of a politician, doesn't matter. It doesn't matter if that hand is of a teacher, doesn't matter. It doesn't matter if the hand is of an engineer or a millionaire or a businessman or anything, doesn't matter. What really matters is look at the wonderful expression of care, of offering that you see. That is what, the moment you look at this, no, you cannot say ये बुरे लोग हैं. क्या बोल सकते हैं बुरे लोग ने? ये तो बहुत अच्छे लोग हैं. You don't know them, you're just seeing the hand, you're just seeing the flowers, you're just seeing the expression. यही होता है. People will remember you as a wonderful person in their life if you will be blessed with morals. Therefore, my dear friends, important, please study moral values. Most people, they try to make a better world for our children. हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा बढ़िया संसार मिले, लेकिन हम इस संसार को देने के लिए अपने बच्चों को बढ़िया नहीं बनाने की कोशिश करते हैं. ये संसार को अच्छे बच्चे देने की कोशिश हमें करना चाहिए. हमें चाहिए कि हम इस संसार को अच्छे बच्चे दें, है ना? अच्छे संस्कारों वाले बच्चे इस जगत को, इस संसार को मिलने चाहिए. ये नहीं कि बच्चों को अच्छा संसार मिले. ऑफ कोर्स हमारा फोकस हमेशा कई बार इसी पे रहता है कि बच्चों को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, बच्चों को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, पर बच्चा भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना सबको. हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं चाहता हूं मुझे पूरा संसार अच्छा तरह से ट्रीट करे, लेकिन मैं भी तो संसार के लिए अच्छा बनना चाहिए ना, राइट? हाउ इज दैट? Because we should always have in mind, let us make a better world. आइए हम एक मिलजुल के मॉरल साइंस पढ़ते हुए, मॉरल वैल्यूज को अपने दिल में संजोते हुए, नए नए वैल्यू सिस्टम्स को अपने अंदर डेवलप करते हुए, अच्छा इंसान बनते हुए इस दुनिया को भी अच्छा बनाने की एक कोशिश कर सकते हैं. और दुनिया को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को नहीं बल्कि खुद को अच्छा बनाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? I think it gives us a great message. Let's make a better world. Yes. Now you make the world a better place by making yourself a better person. So how rightly said. So if you want to make the world a better place, you have to make yourself a better person in that place. Okay. So you make the world a better place by making yourself a better person. अगर आप अपने दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया अच्छी जगह बने, तो उस दुनिया को आप अपनी सेवा इसी प्रकार कर सकते हैं कि आप उस दुनिया में रहने वाले एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को बनाएं, अपने जीवन को इस प्रकार से सजाएं, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ के द्वारा, अच्छे अच्छे मॉरल्स के द्वारा, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स के द्वारा. और ये सब चीज़ें मॉरल साइंस के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वैल्यू एजुकेशन के द्वारा हमें प्राप्त होती है. हमारा सारा नॉलेज गलत दिशा में चला जाएगा, हमारी सारी इंटेलिजेंस और टैलेंट गलत दिशा में चली जाएगी अगर हमने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं अपनाया, मॉरल साइंस को, इम्पोर्टेंस को नहीं समझा. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मॉरल वैल्यूज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट फॉर किड्स, इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, इट्स नॉट जस्ट फॉर टीनेजर्स, it's for everybody. If you're alive, if you're breathing, if your heart is thumping, if you talk, if you behave, if you are planning, if you are alive, you need moral science. Every moment you need moral science. Every moment in your life, in every stage of your life, you need moral science. Okay, so we have to understand its importance. Yes, and we have to embrace it in our life and give it. So now I think you can reach this position here where you can tell yourself and you can whisper yourself with a decision. So now I have decided I should study moral science. I'm sure now you have decided that you should study moral science, and I'm sure you will. Yes, you will. Great. So I thank you so much, all of you who are part of this talk. Dear children, respected parents, all the people who have visited the video and seen it, and
I would also like to put a word here that we should also thank the principal, Reverend Sister Marin. She's the principal of Mount Carmel School, and it was her great wish as well that such talks should be conducted frequently for our children. So do remember us in your prayers. God bless you and God bless your family. Thank you very much.